Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting story. Class 8 English, Chapter 3, The Cherry Tree. Now the cherry tree, as you all know, cherry, it is a fruit, a very delicious fruit, though very small. And if you have not seen, you can see here. Can you see? Small, round. They have got a seed inside them, a bit sweet, a bit sour. So that is cherry. So this story, it is about a cherry tree. और ये जो story है, ये one of my favorite writers, Ruskin, he has written it. और आप सबने भी कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में you must have read the stories, some beautiful stories written by Mr. Ruskin Bond. And as you all know, Ruskin Bond हमेशा nature, animals, birds, plants, trees, forest, he always write the stories about them. So ये जो हमारी story है cherry tree, ये भी एक ऐसे बच्चे की कहानी है, राकेश, who plants a cherry tree. कैसे वो tree बड़ा होता है, how do they look after it. So this is a very beautiful story. So let us now start. So starting में, as you can see, there are some warm-up exercises. They have just asked some parts of the plant and you can just go through them. So now let us start with the story. Rakesh lives with his grandfather in a little cottage in the Himalayan foothills. His parents live in a small village 50 miles away, but there are no schools there. So Rakesh comes to live in Mussoorie with his grandfather. So हमारी जो story है ये setup है मसूरी में. And Mussoorie, as you all know, it is a very famous hill station. It is also called Queen of Hills. And it is based on the Himalayan foothills. तो जो हमारा ये कैरेक्टर राकेश है वो अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है, मसूरी में रहता है, बिकॉज जो उसके पेरेंट्स हैं वो अराउंड 50 माइल्स दूर एक स्मॉल गांव में रहते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई स्कूल्स नहीं है. सो दैट्स वाई वो अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी में रहता है, सो दैट वो स्टडी भी कर सके. वन डे व्हेन राकेश वाज 7, he walked home from the Mussoorie bazaar eating cherries. They were a little sweet, a little sour, small, bright, red cherries, which had come all the way from the Kashmir Valley. By the time he reached home, only 3 cherries were left. So, the story starts when Rakesh is 7 years old and he's coming back from his school, and on the way he passed through the Mussoorie bazaar. तो बाज़ार से इसको कुछ चेरीज़ मिली और वो चेरीज़ खाते खाते घर आ रहा था. तो चेरीज़ दे आर जस्ट टेलिंग कि थोड़ी सार थी, स्मॉल होती है, ब्राइट कलर की रेड चेरीज़ थी. एंड एज यू ऑल नो, जो चेरीज़ है वो कूलर एरियाज़ में ग्रो करती है, तो मोस्टली कश्मीर एरिया से आती हैं. तो वो कश्मीर से चेरीज़ आई हुई थी बाज़ार में, तो उसने मे बी बाई करी कुछ चेरीज़ और वो खाते खाते घर आ रहा था. तो जब वो घर पहुँचा तो जो उसकी चेरीज़ थी, देवर ओनली 3 ऑफ द चेरीज़ देवर लेफ्ट. Have a cherry, Dada, he said, and as soon as he saw his grandfather in the garden. Grandfather took one cherry and Rakesh promptly ate the other 2. He kept the last seed in his mouth for a long time, rolling it around until the tang had gone. Then he placed the seed on the palm of his hand. So जैसे ही वो घर पहुंचा, उसने अपने ग्रैंडफादर को देखा तो उसने बोला कि दादा, एज यू ऑल नो, आप सब भी अपने ग्रैंडफादर को दादा बोलते होंगे, तो उसने भी इसे प्यार से अपने ग्रैंडफादर को बोला, दादा लो चेरी खाओ. तो एक चेरी तो दादा ने ले ली और बाकी जो 2 बची हुई थी चेरीज़ वो राकेश ने खा ली. तो जब वो लास्ट चेरी उसके मुंह में थी तो वो उसको रोल करता रहा और until the tang had gone. What is tang? Tang is when you are eating something और जब तक उसका लास्ट फ्लेवर आता रहता है, you just go on continuously eating it. तो जो उसका टेस्ट था, वो स्मेल थी, तब तक वो खाता रहा जब तक उसका टेस्ट आता रहा. फिर उसके बाद उसने सीड निकाली और अपने हाथ पर रखी. Are cherry seeds lucky? he asked. Of course, said grandfather, but nothing is lucky if you put it away. If you want luck, you must put it to some use. What can I do with the seed? Plant it. So Rakesh found a small space and began to dig up a flower bed. I will plant it here. I don't think that is a good idea, said grandfather. I have sown mustard in that flower bed. Plant it in that shady corner.
where it won't be disturbed. So what happened? अब जो उसके हाथ में चेरीज थी उसने हाथ में लेकर कहा कि क्या चेरी की सीड्स लकी होती हैं? तो उसके ग्रैंडफादर ने क्या कहा? यस, होती हैं, लेकिन कुछ भी चीज़ तब तक लकी नहीं होती जब तक आप उसका यूज़ नहीं करते। उसको आपको अगर लकी बनाना है तो आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा, खुद से कोई भी चीज़ लकी नहीं होती। तो ये सेट कि अरे मैं सीड के साथ क्या कर सकता हूँ? उन्होंने कहा इसको प्लांट कर दो, इसको उगा दो, मिट्टी में दबा दो। सो राकेश ने एक छोटी सी जगह ली वहाँ पर और एक फ्लावर बेड पे उसने कहा कि अरे मैं यहाँ पर अपनी सीड्स उगाऊँ। तो उसके ग्रैंडफादर ने कहा नहीं नहीं, यहाँ पर मैंने मस्टर्ड उगाई है, तो आप ऐसा करो, आप यहाँ पर मत इसको लगाओ, आप इसको एक शेडी कॉर्नर में लगा दो, एक थोड़ी सी धूप कम आती है जहाँ पर, वहाँ लगा दो, वहाँ पर इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। राकेश went to the corner of the garden. He pressed the seed into the soil with his thumb and it went right in. Then he had his lunch and ran off to play cricket with his friends. He forgot all about the cherry seed. तो जैसे कि होता है सिंपल से उसने मिट्टी वो कॉर्नर में गया, वहाँ पर उसने मिट्टी में जरा सा अपना हाथ रखा, थम रखा, और थम क्योंकि मिट्टी गिल्ली थी तो वो नीचे उसका चला गया अंगूठा, और वहाँ पर उसने अपनी सीट को प्रेस किया और ऊपर से मिट्टी डाल के वो चला गया। एंड ही वेंट अवे, उसने लंच किया, अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने चला गया, और वो भूल गया कि कभी मैंने यहाँ पर एक चेरी की सीड लगाई थी। सो स्लोली स्लोली वेदर चेंज हो रहा है। व्हेन इट वॉज विंटर इन द हिल्स, अ कोल्ड विंड ब्लू down the mountains and went woo 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 in the deodar trees. In the evenings, grandfather and Rakesh sat outside near a charcoal fire and grandfather told stories about people who turned into animals, beans that jumped and stones that wept. So now they are telling कि when it was winter in the hills, तो क्या होता है जब पहाड़ों पर हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे देवदार के ट्रीज़ होते हैं, देवदार की ट्रीज़, इफ़ यू डोंट नो, यू मस्ट हैव रेड समवेयर और सीन समवेयर, निडल शेप ट्रीज़ होते हैं एंड दे आर स्लांटिंग डाउनवाइज, तो कोन शेप लगते हैं ऊपर से। तो जब वो हवा चलती है, ठंडी हवा चलती है, तो जब वो पेड़ों के अंदर से पास करती है तो आपको ऐसी आवाज़ आती है। सो ऐसी आवाज़ें आती थी रात को, और वो लोग शाम को आग जलाकर बाहर बैठते थे। चारकोल एज यू ऑल नो, कोयला, तो कोयले की वो लोग आग जलाकर बैठते थे, और वहाँ पर जो ग्रैंडफादर थे वो उसको स्टोरीज सुनाते थे, डिफरेंट स्टोरीज, एनिमल्स की, बीन्स दैट जम्प, स्टोन्स दैट वेप्ट, तो डिफरेंट इमेजिनरी फैंटेसी कहानी वो उसको सुनाते थे। They knew it was spring when the wild ducks flew north again to Siberia. Early in the morning when he got up to chop wood and light a fire, Rakesh saw the V-shaped formation flying northward. So what happens? As you all know, यहाँ पर अब क्या बता रहे हैं कि सीज़न चेंज हो रहा है। विंटर आया, विंटर के बाद स्प्रिंग का सीज़न आया। स्प्रिंग मतलब जब बसंत का मौसम, तो स्प्रिंग आया तो व्हाट हैपन्स कि जो कुछ बर्ड्स होती है माइग्रेट कर कर जो वार्मर रीजन्स है वहाँ पर आती है, मोस्टली फ्रॉम साइबेरिया। लेकिन जब यहाँ पर भी गर्मी हो जाती है तो वापस उड़कर वो अपने कोल्ड कर्नीज पे चली जाती है। तो सुबह सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जो वाइल्ड डक्स है वो नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रही है, मतलब अब विंटर धीरे धीरे जा गया और हमारा स्प्रिंग आ रहा है, राइट। तो अब उसने फिर क्या देखा, वो थोड़ी सी लकड़ी काट कर और आग जलाने ही वाला था, तो उसने देखा एक वी शेप की फॉर्मेशन नॉर्थवर्ड जा रही है। वी शेप की फॉर्मेशन क्या होता है, जब बर्ड्स, आपने देखा होगा जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो वो वी शेप में उड़ती है। वी शेप में क्या होता है कि वो फ्लाई इजीली कर पाती है और लॉन्ग डिस्टेंस इजीली कवर कर पाती है। सो उसने ये देखा वी शेप फॉर्मेशन बर्ड्स की, डक्स की, तो उसको समझ में आ गया कि अब जो है स्प्रिंग सीजन आ गया है। वन मॉर्निंग इन द गार्डन, Rakesh bent to pick up what he thought was a small twig. He found to his surprise that it was well rooted. He ran to fetch grandfather, calling, "Dada, come and look. The cherry tree has come up." "What cherry tree?" asked grandfather. "The seed we planted last year. Look." They both bent down and peered at the tiny tree. "Yes, it's a cherry tree," said grandfather. "You should water it now and then." Rakesh went indoors and came back with a watering can. "Don't drown it," said grandfather, laughing. Rakesh gave it a sprinkling and circled it with pebbles. "What are the pebbles for?" grandfather asked. "For privacy,"
Rakesh said. So what happened now? Now slowly the winter had come, winter had gone. Now spring has come. Now what happens? वो सुबह सुबह गार्डन में जाता है. अब क्या देखता है? As you can see in the pic, उसको लगा कि शायद एक लकड़ी पड़ी हुई है. Twig is small stick होती है, तो वो उसको उठाने लगा. तो उसने जैसे ही देखा, अरे वो तो उसको लगा कि वो तो बिल्कुल ज़मीन में अच्छे से गड़ी हुई है, वेल रूटेड है. तो उसको लगा, अरे ये तो मेरा वो चेरी ट्री था, जो मेरी चेरी सीड थी वो जर्मिनेट हो गई और उसमें से प्लांट आ गया. तो उसने जल्दी से अपने दादा को आवाज़ लगाई, प्लीज़ कम क्विकली, देखो मेरा चेरी ट्री आ रहा है. तो देन ही वाज आल्सो सरप्राइज कि अरे चेरी ट्री. उसने कहा हाँ, जो हमने लास्ट ईयर प्लांट किया था. तो कैन यू सी 1 ईयर हो चुका है. ओके, सो दोनों ने देखा और यस, ये तो चेरी ट्री है. अब उसके ग्रैंडफादर देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा कि अब आपको इसको थोड़े टाइम पानी देना चाहिए. नाउ एंड देन मतलब कभी कभार जब भी आपको ये ड्राई लगे आपको इसको वाटर देना चाहिए. सो राकेश अंदर गया और वहाँ से वाटरिंग कैन लिया. यू कैन सी द वाटरिंग कैन. वो वाटरिंग कैन लेकर आया और उसको स्प्रिंकलिंग करने लगा. तो ग्रैंडफादर ने कहा कि भाई इतना भी मत पानी दो कि बेचारा डूब जाए. दे वर जस्ट लाफिंग एंड टॉकिंग. सो यू कैन जस्ट सी फ्रॉम ऑल दिस कन्वर्सेशन कि जो ग्रैंडफादर और जो ग्रैंडसन थे, मतलब राकेश और उसके जो ग्रैंडफादर थे, दे हैड अ वेरी नाइस फ्रेंडली बिहेवियर अमंग देम. बहुत अच्छा रिलेशन था दोनों के बीच. सो उसके बाद क्या किया राकेश ने स्प्रिंकल किया पानी और उसके चारों तरफ ये पेबल्स लगा. ये पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर. तो उन्होंने पूछा क्यों लगाए हैं आपने? उसने कहा प्राइवेसी के लिए, मतलब कि मैं और मेरा पेड़, अब ये मेरा पेड़ है तो इसको अलग से रखना चाहिए ताकि कोई आकर इसको डिस्टर्ब नहीं करे. ये हम दोनों की आपस की बात है, ये हमारी प्राइवेसी की. ओके, नाउ व्हाट हैपेंड नेक्स्ट? दैट ईयर द मॉनसून रेन्स केम अर्ली. सो अब मॉनसून का टाइम आ गया. Ferns sprang from the trunks of trees and the trees dripped as the mist came curling up the valley. The cherry tree grew quickly in this season. It was about 2 feet high when a goat entered the garden and ate all the leaves. Only the main stem and the 2 thin branches remained. So what happened? अब मानसून का टाइम आया तो एज यू नो मानसून में बारिशें आती हैं और ट्रंक्स जो ट्रीज़ की होती है वहाँ से फर्न्स आ जाते हैं बाहर. फर्न्स ग्रीन लीव्स होते हैं, वो उग जाते हैं पेड़ों की जो ट्रंक्स होती हैं. और पेड़ों के ऊपर से पानी गिर रहा था. मिस्ट समझते हो, धुंध टाइप रहती है वहाँ पर वैलीज़ के अंदर, बिकॉज हम ये मसूरी की बात कर रहे हैं, हिल स्टेशन की बात कर रहे हैं. तो इसी मौसम में जो ऐसा ठंडा, थोड़ा सा बारिश वाला ठंडा मौसम होता है, इसमें जो चेरी ट्री था वो अच्छे से ग्रो कर रहा था. लेकिन जब वो 2 फीट का हुआ लगभग, तो क्या हुआ? एक गोट उनके गार्डन में आ गई और उसने उसके सारे लीव्स खा लिए और सिर्फ क्या बचा? सिर्फ एक मेन स्टेम और 2 ब्रांचेस. Never mind, said grandfather, seeing that Rakesh was upset. It will grow again. Cherry trees are tough. Towards the end of the rainy season, new leaves appeared on the tree. Then a woman cutting grass came down the hillside, her scythe swishing through the heavy monsoon foliage. She did not try to avoid the tree. One sweep and the cherry tree was cut in two. So what happened? अब गोट ने जब उसके लीव्स खा लिए तो ग्रैंडफादर ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो. थोड़ा राकेश अपसेट हो गया था, सैड हो गया था, तो उसने कहा दोबारा उग जाएगा, कोई बात नहीं, चेरी ट्री बहुत टफ होते हैं, कोई बात नहीं, वापस हो जाएगा. तो क्या हुआ, जैसे जैसे जो रेनी सीजन था वो एंड हुआ, उसके अंदर न्यू लीव्स आ गए. अब क्या हुआ? एक और नेक्स्ट इंसिडेंट. एक वुमेन उनके घर में घास काटने आती थी, तो उसका जो स्काइथ था, स्काइथ क्या होता है? जिससे हम लोग घास काटते हैं, तो वो काट रही थी उससे. तो वो जैसे ही काट रही थी तो फॉलीज मतलब जो बहुत घास फूस उग गई थी गार्डन में, उसके साथ साथ वो जो ट्री था, उसने ट्री को ध्यान ही नहीं करा क्योंकि छोटा सा ही था ट्री वो तो, और उसके साथ उसने ट्री को भी काट दिया. और कैसे कटा? 2 पार्ट्स हो गए. एक तो ज़मीन से लगा रहा और बाकी आधा हिस्सा उसने काट लिया. When grandfather saw what had happened, he went after the woman and scolded her, but the damage could not be repaired. Maybe it will die now, said Rakesh. So, जब ग्रैंडफादर ने देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, उनको भी बहुत बुरा लगा. वुमेन के पास गए, उसको डांटा, लेकिन क्या हो सकता था, पेड़ तो कट चुका था. तो अब राकेश ने क्या कहा? मुझे लगता है कि शायद अब ये पेड़ मर जाए. But the cherry tree had no intention of dying.
By the time summer came around again, it had sent out several new shoots with the tender green leaves. Rakesh had grown taller too. He was 8 now, a sturdy boy with curly black hair and deep black eyes. So, almost वापस से वही सीजन आ रहा था, गर्मी का टाइम आ रहा था, और इसके अंदर क्या हुआ, न्यू शूट्स निकल गए, उसके अंदर से नए स्टेम्स और शूट्स और लीव्स आ गए, और जो राकेश 7 इयर्स का था वो अब 8 इयर्स का बॉय बन गया, वो भी थोड़ा सा टॉल हो गया, उनका पेड़ भी टॉल हो गया. तो नाउ दीज 3 लाइन्स दे आर जस्ट टेलिंग अस हाउ ट्री एंड राकेश दे वर बोथ ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ देयर हाइट, इन टर्म्स ऑफ देयर एज. जो ट्री था उसके पास न्यू शूट्स आ गए, ग्रीन लीव्स आ. जो राकेश था वो स्टर्डी बॉय बन गया, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बॉय बन गया, और उसके पास कर्ली ब्लैक हेयर्स थे और डीप ब्लैक eyes. Okay, so they are just showing the comparison and relating each other. One day he found a bright green praying mantis perched on a branch. It was the cherry tree's first visitor. The next visitor was hairy caterpillar who started eating the leaves. Rakesh removed it quickly and dropped it on a heap of dry leaves. Come back when you are a butterfly, he said. So now can you see in the pic, praying mantis, a sort of grasshopper types, some insects type होते हैं जो, तो क्या होता है जब जैसे जैसे पेड़ ग्रो करते हैं उनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंसेक्ट्स और एनिमल्स आते हैं. तो सबसे पहला आया प्रेइंग मैंटिस, और उसके बाद क्या आया, उसके बाद एक कैटरपिलर आ गया. एंड एज यू ऑल नो, caterpillar they eat the leaves very fast because that's a growing stage of caterpillar, because caterpillar they change into pupa and then they change into butterfly. तो वो ईटिंग स्टेज थी कैटरपिलर की. राकेश को पता था कि अगर वो इस पेड़ पर रहा तो ये मेरे सारे लीव्स खा जाएगा चेरी ट्री की, तो इसलिए उसने उसको उठाया और उसको एक जो ड्राई लीव्स की एक हीप थी, उसको मारा नहीं, जस्ट सी, उसने उसको मारा नहीं, उसने उसको उठाकर दूसरे लीव्स के ऊपर रख दिया और उसको बोला, क्या बोला, जब तुम बटरफ्लाई बन जाओ वापस आ जाओ. सो दिस अगेन शोज कि राकेश, ही वॉज अ नेचर लविंग पर्सन, ही लव द एनिमल्स एंड द बर्ड्स एंड द इंसेक्ट्स. ओके, उसने हार्म नहीं किया उसे. सो अब वापस से विंटर का सीजन आ रहा है. चेरी ट्री बेंड लो विद द वेट ऑफ द स्नो. स्नो गिरती है पहाड़ों पर. देन इन February it was Rakesh's birthday. He was 9 and the tree was 3. But it was almost as tall as Rakesh. One morning when the sun came out, grandfather went into the garden. He stared at the cherry tree and then called out, Rakesh, come and look. So quickly एक साल फिर से बीत गया. जो चेरी ट्री था विंटर में स्नो के नीचे दबता था. फिर February आई तो राकेश का बर्थडे आया, वो 9 इयर्स का हो गया, और जो ट्री था वो 3 इयर्स का हो गया. और वो अब कितना हो गया, वो राकेश जितनी हाइट का पहुंच गया. तो एक दिन जब से ग्रैंडफादर गार्डन में गए, धूप निकली हुई थी, तो क्या हुआ, ग्रैंडफादर ने उसको आवाज दी, राकेश कम आउट. कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड? राकेश एंड ग्रैंडफादर गेज्ड एट द ट्री. गेज्ड मींस लुक्ड एट द ट्री. देयर वाज अ पेल पिंक ब्लॉसम एट द एंड ऑफ द ब्रांच. द फॉलोइंग ईयर देयर वर मोर ब्लॉसम्स. तो जब पेड़ 3 साल का हो गया, 3 इयर्स का हो गया, तो उसके ऊपर पिंक फ्लावर्स है. ब्लॉसम मींस फ्लावर्स. ऑफ कोर्स फ्रूट बनने से पहले फ्लावर्स आते हैं, तो उस साल उसके ऊपर थोड़े से पिंक फ्लावर्स आए. अब 1 साल और बीत गया. फॉलोइंग ईयर मतलब आगे आने वाले साल में उसके पास और ब्लॉसम्स आए. और अब क्या हुआ, सडनली जो ट्री था वो राकेश से ज़्यादा बड़ा हो गया. एज यू मस्ट ऑल बी नोइंग कि जब हम छोटा सा एक पेड़ लगाते हैं, सीड लगाते हैं या पौधा लगाते हैं, पहले तो वो हमारे से हाइट में छोटा होता है, लेकिन उसके बाद वो एक ट्री बन जाता है. इट बिकम्स मच मच टॉलर देन अस. इतना टॉल कि हम उसके ऊपर चढ़ भी सकते. तो ऐसा ही पेड़ के साथ हुआ, चेरी ट्री के साथ. वो राकेश से भी बड़ा हो गया, और उसके बाद वो ग्रैंडफादर से भी टॉल हो गया, हु वॉज ओल्डर देन सम ओक ट्रीज. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ग्रैंडफादर के साथ उन्होंने लगाया कि ग्रैंडफादर तो ओक ट्रीज से भी ओल्ड थे. ओल्ड मतलब कि वो बहुत बुजुर्ग हो गए थे, और जो उनके गार्डन में कुछ ओक ट्रीज लग रहे थे वो भी बहुत ग्रैंडफादर से कम बूढ़े थे. तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि ग्रैंडफादर तो खुद इतने बूढ़े थे कि कुछ पेड़ भी उनसे यंग थे, लेकिन तब भी जो वो चेरी ट्री था वो उनसे भी हाइट में बड़ा हो गया. मीन्स इट इज टेलिंग कि जो चेरी ट्री था वो अब फास्ट ग्रो कर रहा था. बट राकेश हैड ग्रोन टू. अब राकेश भी बड़ा हो गया था. ऑफकोर्स पेड़ से तो छोटा था, लेकिन राकेश भी बड़ा हो गया था. ही कुड रन एंड जम्प एंड क्लाइंब द ट्रीज एज वेल एज मोस्ट बॉयज. ही रेड अ लॉट ऑफ बुक्स.
although he liked listening to grandfather's stories. तो अब जो राकेश था, now can you see Rakesh here? He's grown taller. This is grandfather. और राकेश बुक्स पढ़नी अच्छी लगती थी, लेकिन वो अपने ग्रैंडफादर से स्टोरीज भी सुनता था. अब उसके पेड़ पर क्या क्या आने लगा था? बीज आने लगी थी. हनी बीज, यू नो हनी बीज नेक्टर कलेक्ट करने आती है. हनी बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर in the blossoms of the tree. You can see the flowers, and tiny birds pecked at the blossom and broke them off. But the tree kept blossoming. That summer there were small cherries on the tree. Rakesh tasted one and spat it out. So what happened? अब हनी बीज आने लगी नेक्टर लेने, और जो उसके कुछ बर्ड्स थी वो उसके फ्लावर्स पे पैकिंग करती थी अपनी बीक से. लेकिन जो पेड़ था उसके ऊपर और फ्लावर्स आते गए, और एक समर में, उसी समर में क्या हुआ, उसके ऊपर छोटी छोटी चेरीज आई. नाउ कैन यू सी द स्मॉल रेड चेरीज? और राकेश ने एक तोड़ी और उसको खाई, लेकिन एकदम फेंक दी उसने. स्पैट इट आउट मतलब एकदम मुंह से बाहर थूक दी. क्यों? इट्स टू सार. टू सार मतलब बहुत खट्टी है. दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर, ग्रैंडफादर रिप्लाइड. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा फल ऐसा ही आता है, बाद में ये अच्छे आएंगे. A few days later, on a warm sunny afternoon, Rakesh went into the garden and lay down on the grass beneath the tree. He gazed up through the leaves at the great blue sky. Grandfather came outside too, and they waited in silence until the stars came out. There are so many trees in the forest, said Rakesh. Why do we like this tree so much? Because we planted it ourselves, said Grandfather. Just one small seed, said Rakesh, and he touched the smooth bark of the tree that had grown. I wonder, he whispered, is this what it feels like to be God? So what happened? अब एक दिन दोपहर का टाइम था, तो क्या हुआ, राकेश और उसके जो ग्रैंडफादर थे दोनों पेड़ के नीचे घास पर लेट गए, और वो पेड़ की तरफ देखने लगे, उसके लीव्स को देखने लगे, स्काई को देखने लगे, और वो लेटे रहे. कब तक? जब तक कि रात नहीं होगी, स्टार्स बाहर आए. फिर राकेश क्या बोलता है कि हमारे जंगल में, हमारे आसपास इतने सारे पेड़ हैं, लेकिन हमें ये वाला ही पेड़ इतना अच्छा क्यों लगता है? व्हाट डिड ग्रैंडफादर से? बिकॉज ये प्लांट हमने खुद किया था, इसकी सीड हमने खुद लगाई थी, हमारे सामने ये स्लोली बड़ा. एंड व्हाट डिड राकेश से देन? यस, जस्ट वन स्मॉल सीड. एक छोटी सी सीड से ये हमारा कितना बड़ा एक पेड़ बन गया कि इसके ऊपर इतने सुंदर फ्लावर्स आए, इसके ऊपर इतने सुंदर अब फ्रूट्स आएंगे, और इसके ऊपर कितने सारे बर्ड्स और इंसेक्ट्स और एनिमल्स आते हैं. एंड देन ही टच द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री. उसने उसके पेड़ के तने को हाथ लगाया. एंड व्हाट डिड ही से? आई वंडर, इज दिस व्हाट इट फील्स लाइक टू बी गॉड? कि क्या जब आप भगवान बन जाते हैं तो क्या आपको ऐसा ही फील होता है जैसे मुझे फील हो रहा है? एंड डू यू अंडरस्टैंड उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जो गॉड है वो सबको क्रिएट करता है. यहाँ पर उन्होंने क्या किया था? एक सीड से इस ट्री को क्रिएट किया था. तो ही सेड कि शायद भगवान को भी ऐसा ही फील होता होगा, क्योंकि वो भी पूरी दुनिया बनाता है. सो दिस इज द स्टोरी बाय अ ग्रेट रस्किन बॉर्न, अ वेरी नाइस स्टोरी. और इससे आपको क्या मिलता है मॉरल? दैट वी शुड ऑलवेज ट्राई टू प्लांट एज मैनी ट्रीज एज वी कैन. They are not only good for the environment, but they give us happiness also. So, as you can see, Ruskin Bond, he himself lives in Dehradun. So, mostly इनकी stories देहरादून के आसपास ही घूमती हैं, मसूरी के आसपास घूमती हैं. So, now, as I'm getting lot of requests from everybody that please answer the questions. So, okay, I'm just briefly telling you the answers. And if you just like my video, of course, no need of saying, you must like it, share it, and subscribe to my channel, and give your valuable views so that I can improve in future and also fulfill your demands. So now let us start with the questions. Why did Rakesh plant the seed of the cherry tree? So why did he plant the seed? He planted the seeds of the cherry tree because grandfather has said that for anything to be lucky, one has to use it, and the best way to use a seed is to plant it. Where did grandfather ask Rakesh to sow the seed? So what did he say? Grandfather asked Rakesh to sow the seed
in a shady corner where it won't be disturbed. In which season did the cherry tree grow quickly? So the cherry tree grew quickly in the rainy season. How old was Rakesh when the first flower bloomed? So when the first flower bloomed, Rakesh was 9 years old. What did Rakesh mean when he said, "Is this what it feels like to be the god?" So by these words, Rakesh had meant that God, who creates everything, he must be filled with excitement and wonder by looking at all of his creations, and he loves all of his creations as much as Rakesh, he is loving the cherry tree. So I hope you have understood all these answers. And regarding the extract, I think extracts are very easy. So maybe it will die now. Who said this to whom? So Rakesh said to grandfather. What had happened? So what had happened? Towards the end of the rainy season, a woman who was cutting the green foliage, she cut the cherry tree into 2 parts. Did the speaker's fears come true? So who is the speaker here? Speaker is Rakesh. So what had Rakesh thought? That one day it will die. But जो राकेश का fear था वो सही नहीं निकला ना. So did the speaker's fears come true? No. No, his fears did not come true because, as the grandfather had said, that the cherry trees, they were very strong, so it grew again. There are so many trees in the forest. Why do we like this tree so much? When were these words spoken? So these words were spoken when one afternoon, one sunny afternoon, grandfather and Rakesh, they were lying on the grass beneath the tree and looking at the cherry tree. And then Rakesh said these words. What did grandfather say in reply? So what did grandfather say? The grandfather said that it was because they had planted the tree themselves and they had watched it grow. So that is why they loved this cherry tree very much. So I hope you have understood all the answers of A and B. And C, I think they are very easy, so you must all try yourself. Mostly they are the repetition of all these, so you must try it yourself. Okay, just a brief quick look. What did grandfather tell Rakesh about luck? He said that nothing is lucky if we put it up. To be lucky, you have to put it to some use. How did Rakesh react on seeing the cherry twig? Rakesh was very excited and he called his grandfather immediately. And then the grandfather, what he did? He asked him to take care of the tree, sprinkle with water, and then he also circled it with pebbles. How did Rakesh know it was spring? So Rakesh knew it was spring when he saw the wild ducks, the migratory birds flying north to the Siberia. What happened to the cherry tree during the rainy season? So the cherry tree grew quickly during the rainy season. It became 2 feet, but one day a goat ate it up and only one stem and 2 branches were left, but they also quickly grew. Describe how the cherry tree and Rakesh seemed to grow up together. So this thing I had explained during the chapter also, that both they were growing. Initially Rakesh was growing and then cherry tree started growing so much fast that it surpassed Rakesh's height. Okay, so you can just describe in detail. So I hope you have all understood this chapter and the question answers. Please do like and subscribe to my channel. So see you later.